माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada God Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna. So now we'll recite some prayers. So there's a lot of importance. I mean, that's the most important thing. Before we start anything, we have to take the mercy and blessings of the Lord and His devotees. So for that, we'll be reciting those prayers. So I'll just share that maybe. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaetam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanvitamscha. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and unto the feet of all Vaishnavas. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami, along with his elder brother Sanatan Goswami, as well as Raghunath Das and Raghunath Bhatt, Gopal Bhatt, and Srila Jeev Goswami. I offer my respectful obeisances to Lord Krishna Chaitanya, and Lord Nityananda, along with Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas, and other associates. I offer my respectful obeisances to Srimati Radha Rani and Sri Krishna, along with their associates Sri Lalita and Vishakha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. O my dear Krishna, you are the friend of the distressed and the source of creation. You are the master of the gopis and the lover of Radharani. I offer my respectful obeisance unto you. Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye.
I offer my respects to Radha Rani, whose bodily complexion is like molten gold and who's the queen of Vrindavan. You are the daughter of King Vishvanu and you are very dear to Lord Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I offer my respectful obeisance unto all the Vaishnava devotees of the Lord. They can fulfill the desires of everyone just like desired trees, and they are full of compassion for the fallen souls. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. I offer my obeisances to Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advait, Gadadhar, Srivas, and all others in the line of devotion. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Armeshwar Gaurang Prabhu, I think our screen is not shared or what? Yes, Prabhuji, you are not sharing the screen. You had given the rights, आपने लिया था ना वापस, you had given. I am trying to do it. You have the rights, Prabhuji. We're trying to figure it out. Just one second. Yes, now you are sharing, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah. Okay. So, thank you so much, everybody. And like last week, हिंदी में ट्राई करिए अगर. अच्छा चलो मैं everybody prefers Hindi or mix or whatever is the desire. कैसा Rameshwar Gaurang Prabhu, what do you say? We used to do it in mix, Prabhuji, Hindi English mix. ठीक है, हम जितना मैक्सिमम हिंदी हो सका यूज कर सकते हैं करेंगे, और आप भी I mean रिमाइंड करा सकते हो in case somebody is not comfortable. और दूसरा चलो हम शुरू करते हैं. अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो, वैसे तो we'll take it maybe preferably later on, but otherwise अगर आप शेयर करना चाहते हो, कभी उस पे चैट में डालना चाहते हो, अदरवाइज somebody can अपना म्यूट से अनम्यूट करके तो बता देंगे, that will be better अगर कुछ जरूर बीच में पूछना हो. ठीक है. सो लास्ट वीक सेकंड चैप्टर में आप सबने पढ़ा होगा दैट अर्जुन लाइक ही वाज सो बिविल्डर्ड, मतलब उसको बहुत बड़े भ्रम में था, दुविधा में था बहुत ज्यादा. तो क्यों दुविधा में था? क्यों हम सब लोग हो सकते हैं, मतलब जबकि वो हमें एक्चुअली अगर हम देखें तो जो अर्जुन है वो दुविधा में नहीं थे, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे. वो तो भगवान के एक नित्य उनके एसोसिएट हैं, उनके हमेशा पार्षद हैं, तो वो कभी नहीं होते, पर वो एक रोल प्ले कर रहे थे जस्ट टू लाइक हम लोगों को सिखाने के लिए या हमें समझाने के लिए. पर हम आज जो भी रोल प्ले कर रहे थे उनको मान के चलें कि वो क्या थे, उस वक्त बिल्डर थे जहाँ उसमें दुविधा में थे. तो उसका रीजन यही है कि हम फैमिली में जैसे भी हम देखते हैं कि फैमिली में कोई भी इतनी अटैचमेंट्स हैं कि हम लोग अगर चाहें भी तब भी हम नहीं कर सकते कि अगर कैसे वो बोलें कि जी चलो मैं अपने, जैसे उसमें तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन थी, पर अगर छोटा मोटा दुख भी देना हो, कुछ करना हो तो हमें मुश्किल लगता है. तो उस केस में तो अर्जुन को अपने फैमिली, जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, उनके जो गुरु हैं, उनको मारने का मतलब एक तरह का काम करना था, इसलिए वो बिविल्डर थे. और दूसरा आपने जो पढ़ा होगा, जो सुनना पिछले उसमें चैप्टर 2 में कवर करा था कि हमारी एक्चुअली रियल आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं. इनफैक्ट अगर हम ये समझ ले, इतना भी समझ ले, इसको अच्छे से समझ लें, तो हमें 90% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है. हम लोग हमेशा जो आज हम थ्योरेटिकली सुन भी लेते हैं, इवन भगवत गीता से सुनते हैं, बहुत सबने लोग सुना होगा कि हम आत्मा है, हम स्पिरिट सोल हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी. तो ये आप अगर हम इस्कॉन में भी अगर आप जितने बार भी सुनोगे तो आपको लगेगा हर बार यही बोलते हैं. बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, या इसका जो अंडरस्टैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी.
हम इसको ऐसे लेते हैं कि अगर हमें लगता है कि मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं, एवरीबडी माइट से कि जी हम तो जानते हैं कि हम आत्मा हैं, पर हम एक्शन कैसे करते हैं? सुबह से शाम तक आप अपनी एक्टिविटीज को देख लो, शुरू कर दो कि आप मॉर्निंग में उठते हो, क्या करते हो, उसके ब्रेकफास्ट करते हो, किस लिए करते हो? शरीर को मेंटेन करने के लिए। एक्सरसाइज हुआ, मान लो कोई लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं शरीर को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद ऑफिस जाते हैं तो उनका क्या, जो उनकी क्या सोच कह लो, जब मनो वृत्ति वो यही होती है कि मुझे पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को मेंटेन करना है, फैमिली के लिए करना है। और उसके बाद जो भी आप इवन रेस्ट करते हो, रात को सोते हो, तो आपको ये लगता है कि मैं सुबह काम के लिए जाना है, तब मुझे रेस्ट करनी चाहिए। तो इसलिए जो सुबह से शाम तक हम अपना जितना भी टाइम देते हैं सिर्फ बॉडी के लिए, शरीर के लिए सोचते हैं। और इसमें हम आगे जाके देखेंगे, इसमें सुनेंगे कि जबकि हम सब कुछ ये करते रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमें नहीं करना, पर हमें सिर्फ थोड़ी सी अपनी सोच, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, कि थोड़ा सा चेंज करने से हम वो ही, इसको हम भगवान से जोड़ सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे हम किसी एक बर्ड है हमारे पास, कोई भी पैरेट कह लो या कोई भी बर्ड है, उसको आपने पिंजरे में रखा हुआ है, तो हर दिन आप सुबह क्या कर रहे हो, उसको बड़ा अच्छे से पिंजरे को पॉलिश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसको सफाई कर रहे हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि अंदर जो पैरेट है उसको मुझे फीड करना है। सिमिलरली हम भी वही कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक हम अपनी बॉडी के लिए करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि सोल, जो एक्चुअली अगर हम समझते हैं कि हम लोग एक आत्मा है, सोल है, तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है, पर वंस वी अंडरस्टैंड दैट, वंस वी हैव द अंडरस्टैंडिंग, तो वी कैन ट्राई एंड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा उसमें क्या, लास्ट में क्या, इसमें हमने डिस्कस करा होगा, और ट्रू ड्यूटीज के बारे में। ट्रू ड्यूटीज हमारी बेसिकली उसमें प्रभु जी ने आपको एक्सप्लेन करा, जो कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभुपाद उनका पपट में समझा रहे हैं कि हमारी लाइक कर्म कांड के बारे में कृष्णा ने बोला, और कर्म योगा के बारे में बोला, उसके कर्म योगा के पार्ट्स बताए, और उसके बाद सांख्या योग, उसका ज्ञान योग, ज्ञान और सांख्य सेम है, फिर उसके बाद बुद्धि योगा, भक्ति योगा, सबका एक्सप्लेन करा। पर उसमें जो इस, क्योंकि वो समरी थी एक चैप्टर की, पूरे भगवत गीता की समरी थी, तो अभी जो चैप्टर 3 में हम करेंगे, तो वो इसका थोड़ा सा जो बेसिकली फोकस हमारा कर्म योगा पे होगा, कर्म कर्म योगा के ऊपर, तो ये हम पढ़ेंगे। और भी मे बी आपने थोड़ा बहुत और हमारी उसमें जो आत्मा राम के बारे में एक्सप्लेन करा, के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो सेल्फ रियलाइज सोल है उसके क्या सिम्टम्स हैं, तो सारा हमने पढ़ा। तो आज जो हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, तो उसमें बेसिकली अर्जुन कंफ्यूज्ड है, तो मे बी यू कैन स्टार्ट विद श्लोका एंड ट्रांसलेशन, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर मे बी। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। Translation. Arjun said, O Janardan, O Keshav, why do you urge me to engage in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruitive work. Actually यहाँ पे अर्जुन बहुत कंफ्यूज है। सेकंड मे बी कैन रीड द सेकंड। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively what is most beneficial for me. एक्चुअली आपने सुना होगा, जैसे चैप्टर 2 में प्रभु जी ने भी एक्सप्लेन करा कि कृष्णा उस अर्जुन को बोलते हैं कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एंड प्लस बेसिकली एक शायद 2.49 है, कौन सा है उसमें, वो बात करते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये वाले जो अबॉमिनेबल एक्टिविटीज हैं ये मत करो, व्हाई डू यू डू दैट। तो उससे क्या होता है कि कृष्ण, जो अर्जुन है, उनको लगता है जो मैं अबॉमिनेबल क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं जो किलिंग की बात कर रहा हूँ अपने मैं अपने गुरु को, इनको मारने की बात कर रहा हूँ, वो अबॉमिनेबल है। तो उनको तो एक्चुअली वो खुद ही लड़ना नहीं चाहते, ही डजंट वांट टू फाइट, तो वो ऑलरेडी अटैच्ड हैं, बट कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो उसको एज एन एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं जो अर्जुन है। तो वो कहते हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, समटाइम्स
बहुत ज्यादा इसको मिसअंडरस्टूड करा जाता है कि इसका मतलब क्या है कि आप जंगल में चले जाओ, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, दुनिया को, संसार को छोड़ दो। पर वो मतलब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि वो जो इमैच्योर या मतलब जो ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं है, उसमें क्या है कि वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कर नहीं पाते। तो विल गो अहेड इनफैक्ट। इनफैक्ट इस वर्स में जो एक इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वर्स में वो ये भी है कि अक्सर ये देखा जाता है, हम सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब है कि अपनी ड्यूटीज को छोड़ दो और एस्केप करो, कोई एक्शन नहीं करना। तो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place. सोचते हैं कि जंगल में जाएं और वहां पे बस हमें तो बस अब तंग आ गए हैं जैसे होता है ना। तो हमें क्योंकि हम गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम भगवान के हिसाब से या भगवत गीता के हिसाब से चलें तो कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, पर हम वो नहीं फॉलो करते हैं और उसको फॉलो किए बिना करने की कोशिश करते हैं, तो वी मेक अ मेस। तो इतनी मेसी सिचुएशन हो जाती है एंड देन वी वांट टू एस्केप फ्रॉम इट, एस्केपिस्ट मेंटालिटी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए डिस्करेज कर रहे हैं। थर्ड वर्स पढ़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। The blessed Lord said, O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men who realize the self. Some are inclined to understand him by empirical philosophical speculation, and others are inclined to know him by devotional work. एक्चुअली इसमें जो कृष्णा कह रहे हैं कि ये दो प्रोसेस हैं बेसिकली। तो देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन। एक तो होते हैं जो स्पेकुलेटर्स बोलते हैं, फिलोसफिकल स्पेकुलेटर्स या एम्पिरिकल फिलोसफर्स। तो दूसरा डिवोशनल, जो डिवोटीज है, मान लो डिवोशनल वर्क करते हैं। तो इन दोनों का जो पर्पस है, यहाँ कृष्णा बता रहे हैं कि दोनों का पर्पस सेम है। मतलब अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे हैव टू गो टू कृष्णा ओनली, दे हैव टू, द गोल इज दैट। बट इसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप एम्पिरिकल प्रोसेस या जो स्पेकुलेशन से जाते हो, स्पेकुलेशन का मतलब जैसे ज्ञानी हैं, तो उनको होता है कि मैं अपनी एफर्ट से करूंगा सब कुछ, अपनी मैं आई एम द डूअर, जैसे होता है ना कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है तो मैं खुद करूंगा। लेकिन जो डिवोटीज हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे की तरह, जैसे अपना बच्चा जो अपने माँ बाप पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है वैसे चलता है। तो दैट्स इजियर। तो इसमें एक्सप्लेन करा कि जो वो वाला जो प्रोसेस है, फर्स्ट वाला प्रोसेस है जो ज्ञान वाला, जो अपने आप पे डिपेंड करने का है, वो मुश्किल है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी है और मुश्किल भी है। और लेकिन जो भक्ति योगा के थ्रू, जैसे भक्ति के थ्रू हम जाएंगे तो वो इजी भी है और डायरेक्ट भी है। Not by merely, now we are on the fourth verse, not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Everyone is forced to act, the fifth verse. Okay. So बेसिकली इसमें भी सेम वही चल रहा है कि प्रभुपाद वही कह रहे हैं, इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वर्ष में कि जो हमारी जो विदाउट प्योरिफिकेशन जो संन्यास है ना, वो बहुत ही बेसिकली इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। क्या होता है कि अगर आपने विद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली, आपने रिनंसिएट कर दिया, संसार को छोड़ दिया, लेकिन आप प्योरिफाइड नहीं हो, आपकी प्योरिफिकेशन नहीं है, तो आप सस्टेन करोगे ही नहीं। तो मतलब उसमें यह है कि जैसे आपने जंगल में चले गए, छोड़ दिया सब कुछ, और आपका ध्यान तो वहां नहीं लग रहा क्योंकि आपकी प्योरिफिकेशन नहीं है। इतना नहीं है कि आप भगवान के लिए 24 घंटे सेवा कर लो। तो इसलिए जो प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे तो वो है कि आप जो इसको से पहले अपने आप को प्योरीफाई करो और फिर मतलब उसको संन्यास में जाओ लास्ट स्टेज में। तो इसमें कैसे प्योरीफाई करें, हाउ डू वी डू द प्योरिफिकेशन। तो जो उसमें प्रोसेस बताया गया है वो है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जैसे पहले भी आपने चैप्टर 2 में भी कृष्णा ने एक्सप्लेन करा। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के थ्रू हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसमें भी आगे उसका प्रोसेस है। ऐसा नहीं प्रिस्क्राइब ड्यूटी किसी भी तरीके से करो,
तो वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी कैसे फॉलो करनी है, अगर हमें आपके साथ साथ प्योरिफिकेशन का प्रोसेस चालू रखना है ताकि हम अल्टीमेटली डिफरेंट स्टेजेस से धीरे धीरे करके प्योरीफाई हो, तो इसमें जो कृष्णा बताते हैं कि अगर ये है कि हमें एक वर्ण आश्रम जो एक तरीका है, अगर वर्ण आश्रम का धर्म हम फॉलो करते हैं तो उसमें हमारी प्योरिफिकेशन हो सकती है। तो आप सबने वर्ण आश्रम के बारे में सुना होगा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे 4 वर्णास हैं, आपने सबने सुना होगा वर्ण, हम कहते हैं ना कि कौन, मतलब मुझे थोड़ा सा जहां तक याद है कि हम लोग सुनते थे पहले कि जी आप कौन से वर्ण से हो, तो ब्राह्मण हो, कुछ क्षत्रिय हो, क्या हो, तो गोत्र वगैरह भी पूछते थे, बट ऐसा भी मतलब बेसिकली 4 वर्ण माने जाते हैं जो शास्त्रों ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि जैसे रिमेंबर करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब कोई कोशिश कुछ कई बार कुछ अंडरस्टैंड करते हैं तो कई बार हम कुछ वर्ड्स होते हैं मैं कैसे याद रखूंगा, तो एक जैसे इसमें है कि अगर आप इसको TATA टाटा एक तरह के अगर याद रखो, तो T फॉर टीचर, T फॉर टीचर, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आगे फिर T आ गया, T का मतलब नेक्स्ट जो थर्ड है दैट इज ट्रेडर, एंड फोर्थ इज A अगेन आर्टिसन, आर्टिसन मीन लेबर, लेबर क्लास और कुछ भी। तो जो टीचर है दैट इज द फर्स्ट ब्राह्मणा, क्योंकि वो दैट्स इंटेलिजेंस क्लास, इंटेलिजेंस क्लास है, उसको बोलते हैं जो ब्राह्मणा कैटेगरी। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि आपने जिसने बर्थ ब्राह्मण फैमिली में हो गया, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण कहते हैं, वो दैट्स नॉट, जो शास्त्राज उसको नहीं मानते, हम लोगों ने बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण है। जैसे एग्जांपल दी जाती है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो उसका बेटा हाई कोर्ट का जज नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट का जज बने, अनलेस ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड। वो बन सकता है पर उसको भी एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा, या सारी अपनी जो वो गुण होने चाहिए, वो क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर वो होगा तो वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण माना जा सकता है। तो उसको बेसिकली आपने अगर कंपनीज में लें या कुछ लें, हम जो अपने बिजनेस में देखें, तो जैसे R&D डिपार्टमेंट होता है, तो R&D डिपार्टमेंट का क्या काम है, रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा जो मतलब ऐसे उनका काम ऐसा है, तो उनको हम ब्राह्मणा कैटेगरी में शास्त्र के हिसाब से मानते हैं। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब कौन है, जैसे जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, जैसे पॉलिटिशियंस हैं और पुलिस ऑफिसर्स कह सकते हो, आर्मी ऑफिसर्स कह सकते हो। तो वो क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटर में क्षत्रिय, उनका क्षत्रिय धर्म मतलब करना, उसको विल डिस्कस मोर इन डिटेल कि उनका क्या फाइनली काम करते हैं। एंड ट्रेडर, जैसे कंपनीज की अगर एग्जांपल लें तो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी फाइनेंस अकाउंटिंग, ऐसे जो काम करते हैं तो वो है ट्रेडर्स, वैश्यास। और जो वर्कर क्लास है दैट इज कॉल्ड शूद्रास बेसिकली। तो जो ब्राह्मणा का मेन, अब दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ब्राह्मण का मेन काम क्या है, उसकी उसको ड्यूटी कह लो, ब्राह्मण की ड्यूटी है कि वो शास्त्र को पढ़ता है, नॉलेज, बेसिकली नॉलेज लेना और नॉलेज देना। अपने पहले शास्त्र पढ़ेगा, फिर उसको नॉलेज को आगे बांटेगा, सबसे शेयर करेगा। दूसरा ड्यूटी है, मतलब जैसे वो शास्त्र पढ़ता है, जैसे शास्त्र को शेयर करता है, लोगों से करता है, तो उसको एज ए Hare Krishna, we'll request everyone to be on mute so that disturbance नहीं हो। जब जरूरत होगी तो आप बाद में अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्षत्रियज हैं, तो उनका काम वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो उनका काम वेलफेयर करना है और प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करते हैं, काउस को, दे प्रोटेक्ट से ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, एवरीबॉडी, एंड वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि उनको मेन घर बेसिकली प्रोवाइड हाउसिंग एंड अदर थिंग, जो भी क्लोथिंग एंड ऑल दैट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। एंड जो उसके बाद आगे थर्ड वैश्या, उनका काम है, जो तीसरी कैटेगरी है, बेसिकली वी कॉल देम बिजनेसमैन, बेसिकली बिजनेसमैन, फार्मर्स, कोई भी है उस कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी बनाई है। और उसका बेसिकली काम है कि तो प्रोटेक्शन करना, काउज की प्रोटेक्शन करना, फार्मिंग करना, ऐसे काम करना, बिजनेस करना।
बट इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे चारों के चारों जितने भी एक आश्रम्स हैं, मतलब आश्रम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम वर्ण्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गृहस्थ आश्रम की है। तो ये जो वैश्यास हैं, जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो पैसा कमाती है। बाकी से जो ब्रह्मचारी हैं या हम आश्रम में पढ़ेंगे, ब्रह्मचारी हैं या वानप्रस्थ हैं या सन्यासी, कोई पैसा नहीं कमाता, कुछ नहीं करता। तो जो गृहस्थास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के तीनों जो आश्रम है उनको मेंटेन करे, ये उसका काम है। और जो चौथा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं आर्टिसंस, तो वो बेसिकली क्या है कि उनका काम है कि बाकी तीनों जितने भी वर्ण हैं उनको सपोर्ट करे, उनकी सपोर्ट करे। तो ये बेसिकली आइडिया ये नहीं है कि वो कोई किसी को अच्छा किसी को बुरा इसलिए बनाए गए हैं, तो हम लोगों ने इसको मिसयूज कर लिया, बट अदरवाइज भगवान ने गुण और क्वालिटी ने, ऐसा नहीं हो सकता कि इवन एग्जांपल्स हैं कि एक ही फैमिली के मुझे आई डोंट रिमेम्बर, शायद लॉर्ड ऋषभदेव के कुछ 100 चाइल्ड थे, तो उनमें से 10-11 कुछ क्षत्रिय थे, कुछ कुछ अलग अलग कैटेगरी ब्राह्मण थे, अलग अलग नेचर, तो अलग अलग नेचर हो सकती है। सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। तो अगर जैसी नेचर है तो वैसा उनका काम है। और दूसरा इसमें एक और कैटेगरी है, कैटेगरी नहीं, जो इसकी क्वालिफिकेशन में हम बात करते हैं कि उनके गुणों के हिसाब से ज्यादा होता है कि अलग अलग गुण है हमारी मिट्टी में। हमने जो जितने लोग हैं उनमें किसी में कुछ सतोगुण होता है, आपने सबने सुना होगा सतोगुण, तमोगुण एंड रजोगुण। तो जो ब्राह्मण है वो हमेशा सतोगुण में होते हैं, और जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में होते हैं, और जो वैश्यास हैं उनमें मिक्स होता है इसका पैशन एंड इग्नोरेंस, जो तमोगुण और रजोगुण, और जो शूद्रास हैं उनमें तमोगुण होता है। तो ये है। और 4 आश्रम का मैंने आपसे डिस्कस पहले बताया, थोड़ा आइडिया दिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि वो उनको चारों को मेंटेन करना है, जबकि बाकी भी है, लेकिन हमारे लिए जो आज हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो गृहस्थ आश्रम है वो मतलब आश्रम, व्हेन इट कम्स टू आश्रम, किसी को आश्रम बोलते हैं, दैट मीन भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से जो रिलेशन में काम कर रहा है वो आश्रम में है। अगर वो गृहस्था जो बाकी लोग हैं, जो मान लो अपनी मैरिड लोग हैं, फैमिली चला रहे हैं, पर भगवान को सेंटर में नहीं करा हुआ, तो उनको गृह मेदी बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम, गृहस्था नहीं बोलते। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम भगवान को सेंटर में रखें और उस गृहस्थ आश्रम के थ्रू धीरे धीरे अपने आप को प्योरीफाई कर सकें। बेसिकली अभी जो 4th से लेके 9th वर्स हैं, ये जो 4 से 9 तक के श्लोकाज हैं, ये जो सोल की, आत्मा की एक्टिव नेचर है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनएक्शन की कोई ऑप्शन नहीं है, कि कोई एक्शन नहीं करना, इन एक्शन मतलब कोई भी हमने कर्म नहीं करना, उसकी ऑप्शन नहीं है। तो कर्म तो करना ही है, मतलब उसको कुछ ना कुछ एक्टिव रहना है, सोल की नेचर है एक्टिव रहना। तो उस पे फोकस कर रहे हैं और उस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा। तो पर हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनका डायरेक्टेड, उसका अल्टीमेट जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि सेल्फ रियलाइजेशन या हमारा सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सारी एक्टिविटीज, क्योंकि बुद्धिमान तो वही है ना कि अगर हम सारा कुछ प्लान करते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, या हम ये करेंगे वो करेंगे, हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, बहुत बड़े प्लान्स, वी मेक ह्यूज, अपने बिजनेस के या जॉब से रिलेटेड या कहाँ रहना है क्या करना है। बट उसको अगर हम कभी कभी, जैसे हम भी सोचते हैं कि हाँ वी आर इन द सेम बोट, तो हम भी सोचते हैं कि क्यों ना कुछ कुछ सिंपल, कुछ हमें कुछ फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें, और वो अल्टीमेट गोल को ध्यान में रखते हुए करें तो इजी हो जाएगा। अगर हमें डायरेक्शन पता हो सही तो कितना इजी हो जाएगा सब कुछ, फिर उसको ध्यान में रख के करेंगे तो इट विल बी सो सो सिंपल। सो उस पे है। और तो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है जिसका हम बात कर रहे हैं कि शास्त्रों के हिसाब से हमें या भगवान ने जो हमें बताया है उसके हिसाब से करें, उसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन हो, हमें आत्मज्ञान हो, और हमें हमारा शुद्धि हो, मतलब हमारे जो इतने इतने जन्मों की अंदर कल वो कंटेमिनेशन आ गया है, चित्त पे तरह तरह के संस्कार आ गए, उससे हम प्योरीफाई हों और हम सब लोग फिर
ठीक से सब कुछ देख पाए, समझ पाए, उससे ये फायदा होगा। 5th वर्स ट्रांसलेशन पढ़ लो, या बाकी कवर वैसे तो हम डिस्कस तो कर ही लिया। 5th Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जैसे हमने कि हम लोग बता दिया कि हम लोग इनएक्टिव नहीं रह सकते, नेचर है। तो उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो आप प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि या तो आप मटेरियल एक्टिविटी करोगे, उसमें इंटेंगल होगे, या स्पिरिचुअल करोगे। तो इट्स बेटर अगर वो आप स्पिरिचुअल करोगे तो दैट विल हेल्प यू इन दैट जो आपकी प्रोग्रेस है टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो या प्योरीफाई करना चाहते हो तो उसमें हेल्प होगी। और इसमें एक चीज और बताई है कि जैसे अगर हम भक्ति भी शुरू करते हैं, बेसिकली कुछ भी करते हैं, अगर प्रोसेस कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर हम कर लें, या अगर शुरू भी कर लिया और हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा उस पर नहीं कर पाए, तो उसमें कोई लॉस नहीं है। मटेरियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आपने कुछ शुरू कर लिया, आपने $100 मिलियन कमा लिए या $100 बिलियन कमा लिए इस लाइफ में, वंस यू डाई देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कोई लॉस नहीं होता। आपने 10% कंप्लीट करा, तो अगर उस जन्म में आप नहीं भी कर पाए, जब 20% करा, तो नेक्स्ट जन्म में आपका वहां से स्टार्ट होगा। ये कृष्णा आप अर्जुन को देते हैं, बताते हैं कि आप डिक्लेयर कर दो, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो बुद्धि जितनी भी मतलब जो भी आपने भक्ति कर ली, उसका कभी लॉस नहीं होता। ना में भक्त्या प्रणश्यति, कृष्णा मतलब श्लोक में कहते हैं। ट्रांसलेशन पढ़ना। One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. इसमें अगेन एक्सप्लेन करते हैं, कृष्णा ये कह रहे हैं कि जो लोग अभी इम्प्योर माइंड है, जिनका जो अभी तक प्योर नहीं हुए, उनका हमेशा सेंसेस के ऊपर ध्यान जाता है। लेकिन वो मेडिटेशन की एक्सक्यूज कर लो, या जो भी अपना करते हैं, कोशिश क्या मतलब उस पर प्रिटेंड करते हैं, तो उसके लिए उनको प्रिटेंडर बोला गया कि आपका इम्प्योर माइंड है और आप ट्राई कर रहे हो कहीं जंगल में जाके प्रैक्टिस करने की, दैट्स नॉट पॉसिबल, वो हो नहीं सकता। तो जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर बहुत सारे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो साधु हैं, वो बीड़ी पी रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो दैट मीन दे हैव अटैचमेंट्स। वो बाहर जाके अकेले कुछ कर नहीं सकते, उनका ध्यान उधर ही है, ध्यान मटेरियल लाइफ में है। इसलिए कृष्णा कहते हैं कि अगर आप करना है तो इसको प्रोसेस को धीरे धीरे प्योरीफाई करो, अपने आप को प्योरीफाई करो। जब आप एक्चुअली फाइनली मतलब प्योर प्रॉपरली हो जाओगे, उस स्टेज पे आ जाओगे, तब फोर्थ स्टेज जो हमने वर्ण आश्रम में शुरू डिस्कस करा कि जो संन्यास लेने की स्टेज है, वो तब करना चाहिए, तब एंटर करना चाहिए। क्योंकि इनएक्शन कोई चॉइस नहीं है। अगेन वही बात आ जाती है कि तो जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में चला जाता हूँ और मैं भीख मांग के भी रह लूंगा, बट मुझे युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि मैं अपनों को मरता या मारता हुआ नहीं देख सकता। तो पर उसकी नेचर नहीं है, वो क्षत्रिय है। अगर वो वहां जाएगा और उसने कुछ वहां पे भी कुछ देखा ऐसा जंगल में कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ है, तो वो रह नहीं पाएगा, वो अपने शस्त्र उठाएगा। और उसकी नेचर ही नहीं है वो, मतलब ये कह रहा है बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, ये भगवान जानते हैं और उसको बता रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपनी नेचर को नहीं जानते हो। तो इसमें साथ में ये जो 6 वर्स है कि हमें प्रिटेंडर, कि हमारा जो ध्यान तो उसमें लगा हुआ है पर हम प्रिटेंड कर रहे हैं। तो उसकी जैसे एक वो मंक्स वाली एग्जांपल है, अदरवाइज वी कैन शेयर देयर। तो जैसे दो एक आपको एग्जांपल देते हैं। कहानी है कि दो मंक्स थे, दो मानो के साधु थे। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे वो, और उनको एक नदी क्रॉस करनी थी। तो नदी क्रॉस करनी थी, तो वहां पे रास्ते में उनको एक लड़की मिली। तो उन्होंने, वो कह रही है कि कोई माता जी जैसे, तो वो कह रही है कि मुझे ये नदी पार करने में मेरी मदद कर दीजिए। अब दोनों ने ब्रह्मचर्य का मतलब व्रत ले रखा है, तो वो तो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं।
तो वो सोच रहे हैं क्या करें, या मदद भी नहीं करें ये भी ठीक नहीं, तो उसको उस पार जाना जरूरी है, कोई वजह है क्या है। तो उनमें से एक साधु उसको उठा के ले जाता है और ले जाके उधर छोड़ देता है दूसरी तरफ, और ये लोग भी अपने रास्ते चलने लग जाते हैं, वो अपने रास्ते चली जाती है। अब काफी देर तक जो दूसरा साधु है वो बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, और काफी देर तक इस उलझन में रहता है। उसको मतलब वो कुछ भी अपना भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगा पाता, और वो यही सोचता रहता है कि ये क्या किया इसने, ऐसे क्यों किया, क्या तो गलत हो गया, और वो सब कुछ। तो ये अपना व्रत मतलब लिया है और ये हम पालन नहीं किया इसने अपना। तो वो फिर आखिरकार 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उससे पूछता है अपने साथी से कि देखो हमने तो ये इकट्ठे हमने ये इसका ब्रह्मचार्य का वो करा है, तो तुमने कैसे ये मतलब ये कैसे किया, क्यों किया। तो वो दूसरा बड़े साधारणता से कहता है कि देखो मैंने तो उसको 2 घंटे पहले उस वो पार छोड़ दिया। उस पार छोड़ दिया था लड़की को, पर तुम उसको अभी तक साथ लेके चल रहे हो अपने मन में, अपने दिमाग में यही तुम्हारे विचार चल रहे हैं। सो बस इतना ही बोला। सो दैट द आइडिया इज कि हम हमारा माइंड अगर वो सेंस ऑब्जेक्ट्स पे ड्वेल कर रहा है, हमें इंटरनली चेंज करना है अपने आप को। ये नहीं कि सिर्फ बाहर का हमने अगर वैसा वस्त्र पहन लिया और अंदर से कुछ और चल रहा है, वो नहीं करना है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली, अगर ये नहीं कि बाहर जो एक्सटर्नल है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि उसकी नहीं है, पर इंटरनल इज मोर इम्पोर्टेंट, कि माइंड में क्या चल रहा है। 6 or 7. 7. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins Karma Yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. या इसमें वही बता रहे हैं कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो मंक्स वाली स्टेज, जैसे कि अगर डिवोशनल सर्विस जो कर रहा है वो सुपीरियर है, और खास करके जो क्या कहते हैं अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जो इंटरनल वाली बात है कि इंटरनल हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। मंक्स में जैसे एग्जांपल में हमने इसमें देखा कि ऐसा नहीं था कि वो उसने उसको छोड़ दिया, एक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको सेव करना था कुछ करा, बट अगर आपकी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, दैट्स लाइक दैट्स मोर डेंजरस। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी और एग्जांपल्स हम टाइम कर सकते हैं कि जैसे एक बार क्या हुआ कि दो कुछ डिवोटीज थे, वो जा रहे थे, वो दे वर कॉट और समथिंग कुछ हो गया, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, बट एसेंस उसकी यही है कि उसमें लाइक दे गॉट कॉट इन ए ब्रॉथल और समथिंग। तो उनमें से एक बट समाओ मैनेज कर लेता है, बाहर निकल जाता है और अपनी टेंपल में जाता है, सेवा करने के लिए चला जाता है। वो सैंपल टेंपल में जा रहे थे, तो लेकिन जो टेंपल में जाता है तो उसका ध्यान हमेशा सोचे जा रहा है कि वो जो बंदा वहां पे रह गया है, ही इज इंजॉइंग, he is much better than me, he is enjoying, I am not able to do any kind of enjoyment. But जो बंदा ब्रॉथल में है फंस गया, he is so disturbed, he is saying I am not able to do my सेवा। मैं जाता, वो भगवान की सेवा कर रहा है, दूसरा मेरा साथी चला गया और मैं तो कर नहीं पा रहा। तो उसका जो माइंड कहाँ है, तो उसमें ये बताया जाता है कि जो जो बंदा चाहे कहाँ भी है, किसी भी एक्टिविटी में, अगर उसका जो मेडिटेशन, उसकी कंसंट्रेशन भगवान में है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सटर्नल अभी हमने शेयर करा, एक्सटर्नल भी है, उनकी अपना जगह है, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। Eighth verse, perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. इसमें भी अगेन जो कृष्णा है वो डिस्करेज कर रहे हैं जो आपका बेसिकली संन्यास लेने के लिए, वही है कि रिनंसिएशन के लिए। उसका रीजन है कि वो कहते हैं कि आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, कुछ काम करना है ना, खाना पीना, पैसा तो चाहिए ना घर के लिए मेंटेन करने के लिए, आप प्योरीफाइड हो नहीं तो आप संन्यास ले नहीं सकते। क्यों नहीं? अगर संन्यास ले भी लोगे तो आपको अल्टीमेटली बॉडी को मेंटेन करने के लिए मांगना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको दुनिया के साथ इंटरेक्ट। आप इतने उस लेवल पे नहीं हो कि आप इतना भगवान पे 100% डिपेंडेंट हो जाओगे कि जी मुझे भगवान कोई ना कोई दे देगा, जैसे मेरे पास आ जाएगा अपने आप तो मैं उसको खा लूंगा, बट अदरवाइज वो नहीं कर सकते। और अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारी तो वो नेचर भी नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, मिलिट्री मैन हो, तुम एक जनरल हो,
और तुम अगर भीख मांग भी नहीं पाओगे, उसकी नेचर नहीं है ना, वो भीख नहीं मांग सकता। अगर भीख, जैसे लास्ट टाइम भी आई थिंक अमित प्रभु ने शेयर करा था कि अगर वो 2 बार उसको कोई भीख नहीं देगा तो अपनी तलवार निकाल लेगा कि यार मतलब मैं, या जानते हो मुझे कौन हूं, तो दैट वे ही नॉट बी एबल टू डू इट। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपनी ड्यूटी करते रहो, साथ साथ प्योरिफिकेशन करो। अभी हम शायद हो लग रहा होगा कि बहुत फास्ट भी जा रहे हैं, बट 1.5 आवर्स में हमने इतने सारे वर्सेस, बट अदरवाइज तो एक वर्स पे ही घंटों चर्चा हो सकती है, तो विच वी कैन डू समटाइम लेटर। मतलब आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, तो और क्लैरिटीज भी हाँ, होती बीच जाएंगी। में कभी भी आपको लगे थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ है, तो वी कैन डू दैट। बेसिकली इट्स नॉट कि हमें एक एक करना है, दैट इज ओके, बट अगेन वो जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल की बात है कि हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी चीज में आपको, हमें एक एक वर्ड नहीं भी होगा तो हम एसेंस डिस्कस कर सकते हैं, तो यू लाइक आप कभी भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो, बोल सकते हो। 9th वर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, और सारी वर्सेस इंपॉर्टेंट हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थं कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचर। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work binds one to this material world. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work binds one to this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage. इसमें अर्जुन जो सोच रहे हैं कि कृष्णा आप मुझे कह रहे हो संन्यास लेने नहीं दे रहे मुझे, और आप कह रहे हो कि मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी करूं, मैं किसी और की ड्यूटी कर नहीं सकता। आई एम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण की ड्यूटी नहीं कर सकता, किसी और नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नेचर नहीं है। आप जो उनके साथ अर्जुन के हिसाब से, कृष्णा के हिसाब से, तो कहते अगर मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करूंगा तो मैं जनरल हूँ, मिलिट्री मैन हूँ, तो मुझे आई हैव टू किल पीपल, लोगों को मारना पड़ेगा। तो मारना पड़ेगा तो मैं तो फंस जाऊंगा उसके, तो मेरे को सिंस लगेंगे, पाप लगेंगे, तो मैं बॉन्डेज में फंस जाऊंगा, बंधन में फंस जाऊंगा, पापों के बंधन में। तो उसमें कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं, वो यज्ञ, जो उसका सेक्रीफाइस का तरीका बता रहे हैं कि कैसे मतलब हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे क्या है कि हमारा हम बंधन में भी नहीं फंसे और प्योरिफिकेशन भी होती रहे, हमारी साथ साथ प्रोसेस भी चलता रहे और हम इन बंधनों में ना फंसी। तो वो प्रोसेस बेसिकली यज्ञ का सेक्रीफाइस का प्रोसेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉर्मली आपने सबने सुना होगा कि हम लोग बहुत सारे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और स्पेशली जो स्टार्ट करते हैं वो कर्म कांड से शुरू करते हैं। बेसिकली यज्ञ उसमें शास्त्रों में या वेदास में बताया जाता है कि जो यज्ञ में क्यों होता है कि जो यज्ञ पुरुष हैं वो विष्णु हैं, यज्ञ पुरुष विष्णु हैं। तो अगर जो यज्ञ की अग्नि है वो क्या है, जो उनकी टंग है, उनकी विष्णु जीवा, की जीवा। जीवा, तो अगर जो भी आप उनको ऑफर करोगे, फायर, जो फायर है वो फायर कुंड है, जो वो तो यज्ञ उनका विष्णु का माउथ है, मतलब Okay. मुख है, और वो टंग उनकी क्या है, बेसिकली जीवा है, जो जीवा है वो उनका प्रोसेस है उसके थ्रू जाने का। तो उसमें क्या है कि अगर आप कुछ भी ऑफर करोगे तो उनको मिलेगा। तो हम लोग जो, जैसे मैंने बताया कि कर्मकांड, जो कर्मकांडी लोग हैं जो सबसे शुरू करते हैं, तो वो बेसिकली उनका तो मेन बिजनेस पर्पस है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि हमें हमें यूज टू है, हम लोग यूज टू है कि जो भी हम कुछ चाहिए हमें तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, तो वही तरीका, वो बिजनेस हम भगवान के साथ करते हैं। तो वो लेकिन फिर भी वो क्योंकि अथॉरिटी में विश्वास है, करते हैं, उसमें अच्छा है। तो वो भगवान को जैसे यज्ञ में कुछ आप ऑफर करोगे, जैसे हवन करा, यज्ञ करा, जैसे किसी बच्चा चाहिए, किसी को स्कूल में एडमिशन चाहिए, किसी को अच्छा बिजनेस चाहिए, किसी को कुछ करे, तो वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हवन करा तो उसमें चाहे वो चीनी है, शुगर से राइस है, घी है, सिल्क है, जो जो बताया, प्रोसेस बताया, उसके हिसाब से हम उसमें डालते हैं, और वो डेमी गॉड, जो देवी देवता हैं और विष्णु भगवान, वो खुश हो जाते हैं और उनको मिलता है और आपकी डिजायर्स पूरी होती हैं, जो जो जैसे प्रिस्क्राइब ड्यूटी करी।
तो बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, ये वो, ये तो कुछ मतलब कोई बात नहीं बनी, मतलब लोगों को आजकल विश्वास नहीं है। पर इसमें क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है तो इट वर्क्स। मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते, हमारी आंखों से हमें दिखती नहीं है, पर हैं बहुत सारी चीजें जो हमने आज से 100 200 500 साल पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन आज हमने साइंटिस्ट ने वो दिखा दी तो हम उस पर विश्वास करने लगे। पर शास्त्र में क्लियर लिखा हुआ है, अगर शास्त्र में लिखा है तो गलत नहीं हो जाता, हो सकता। तो इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक कोई लड़के के किसी के चोट लग गई, गिर गया बहुत ज्यादा, घुटने में चोट लग गई, तो उसको डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा ये लो, ये मेडिसिन है, इसको 3 दिन सुबह शाम लेना, सुबह शाम लेना और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो वो कहता नहीं, अच्छा इसको मैंने पेस्ट बना के इसको अपने घुटने पे लगाना है। वो कहता नहीं नहीं, घुटने पे नहीं लगाना, आपने उसको लेना है, पानी के साथ लेना है, पेट में डालना है। तो वो ही वंडर्स के कैसे हो सकता है कि मैं तो अपना मतलब आप दवाई तो डाल रहे हो पेट में और जा रही है, मेरा कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर कहता है तुम डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसकी चिंता मत करो, तुम लो, फिर मेरे को 3 दिन बाद आप मेरे से डिस्कस करना, रिव्यू करेंगे। तो 3 दिन बाद वो जाता है, वो कहता ठीक हुआ, कहता हो गया। तो देन ही हैज फेथ। तो उसको लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पेट में खाया, तो जो क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो जानता है कैसे बॉडी ट्रीट होगी, तो उसका कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि वो वहीं पे लगाएगा मेडिसिन तभी होगा। ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ में अगर अगर वेदास हैं, जो वेदास में लिखा हुआ है, अगर हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन क्या है कि ये कोई अल्टीमेट नहीं है। जो मान लो यज्ञ की हम बात करें कि कर्मकांडीज हैं, ये चाहे वो अपने मटेरियल लाइफ में यहाँ पे पैसे के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी करें, या इवन हेवनली प्लैनेट्स में जो हमारे स्वर्ग में जाने तक करें, पर वो परमानेंट नहीं, धीरे धीरे उनको समझ आती है कि मजा नहीं आ रहा, कि मैं तो दुख से तो निकला ही नहीं, चला गया ठीक है, आज मैं यहाँ पे करा 100 साल 50 साल यहाँ रहा, फिर उसके बाद मान लो स्वर्ग लोक में भी चला गया, स्वर्ग लोक में भी जाने के बाद भी अल्टीमेटली दुख है, दोबारा मृत्यु होनी है, दोबारा वापस आना है। तो फिर फाइनली उसको लगता है कि मैं दुखी हो गया कि मेरे को जन्म मृत्यु के जन्म जो चक्कर से निकलना है। जब चक्कर से निकलना है तो फिर वो जाता है उसमें अगला स्टेप। तो कई बहुत सारे लोग उसमें ज्ञान में जाते हैं, नॉलेज नॉलेज गेन करते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, क्योंकि वो दुखों से निकलना चाहते हैं, बेसिकली दुखी हो चुके हैं। अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, लेकिन वैसे क्योंकि अपने दुख हो गए ज्यादा, काफी दुखी हो गए, तो वो उससे निकलना चाहते हैं, तो ज्ञान में जाते हैं। तो ज्ञान में बेसिकली आपने देखा होगा कि जो भी हमारा वर्ण आश्रम है, इसमें ज्यादा धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 चीजें होती हैं। धर्म मतलब आप कुछ भी अच्छे काम करते हो, पायस एक्टिविटीज करते हो, अब मान लो यज्ञ करे, वो करे, इसमें अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिला, पैसा आया, अर्थ, पैसा आया, फिर देन यू इंजॉय एंड उसको बोलते हैं काम। ये 3 चीजें होती हैं। इसमें मोक्ष जो है चौथी चीज है, वो मिसिंग होती है। लेकिन जब आप ज्ञानी बनते हो या कुछ करते हो, उसमें नॉलेज भगवान के बारे में जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, फिर ये चौथी चीज ऐड होती है, वो ऐड करते हैं क्योंकि वो दुख से निकलना चाहते हैं। बट दैट इज ऑल्सो नॉट द अल्टीमेट स्टेज, क्योंकि फिर भी वो आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप मोक्ष भी चाहते हो तो आप अपनी सफरिंग से, अपनी दुखों से निकलने के लिए कर रहे हो, तो इसलिए उसको मतलब अल्टीमेट नहीं है, पर दैट्स स्टिल बेटर। तो वो जो है ज्ञानी है, अगर वो वैसा करते हैं तो ब्रह्म ज्योति पे जाने का उनका होता है, क्योंकि सफरिंग से बचना चाहते हैं, दुखी हो चुके हैं बहुत ज्यादा। सफरिंग जो हमारे मटेरियल संसार जो वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी सफरिंग है। तो वो कहते हैं हम कैसे निकले, तो सिर्फ उनका पर्पस अभी भी भगवान की खुशी के लिए करना नहीं है, लेकिन अपने दुखों को दूर करना होता है। तो वो वैसे जाते हैं, पर उसको जो उस स्टेज को क्या बोला गया है कि वो स्टेज ऐसी है जैसे अब न्यूट्रल, जीरो पे आ गई। अब पहले नेगेटिव में थे, फिर जीरो पे आ गए, पर पॉजिटिव नहीं हुए। पॉजिटिव वही होता है जब आप एक्चुअली भगवान की सेवा में लगते हो और एक्चुअली देन यू स्टार्ट इंजॉइंग। क्योंकि जो जीरो मैंने क्यों बोला कि जीरो का मतलब है कि आप जैसे वहां ब्रह्म ज्योति में चले गए, लीन हो गए, आप सफरिंग तो दूर हो गई, पर हमने जैसे 6वें या 7वें श्लोक में पढ़ा था कि जो नेचर है वो है हमारी, जो सोल की नेचर है वो एक्टिव रहना है, तो वहां तो एक्टिविटी है नहीं। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो आप बोर हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, अल्टीमेटली यू विल फॉल डाउन। सो दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग। तो बेस्ट वही है कि जब आप फाइनली भगवान की सेवा में लगते हो। तो
मतलब बेसिकली कर्म कांड से हमें सबसे फर्स्ट स्टेज है कर्म कांड से कर्म योगा तक पहुंचना। योगा मींस भगवान से अटैचमेंट, भगवान से अटैचमेंट। जो कर्म कांड है उसमें आपका बेसिकली आप जो भी करना चाहते हो फॉर योर ओन एंजॉयमेंट, कोई पूजा करो, कोई पाठ करो, जो भी करते हो। लेकिन जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज मान लो निष्काम कर्म भी है, तो निष्काम अभी हम आगे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो उसमें है कि आप फ्रूट्स हैं जो उसका रिजल्ट है भगवान को देने के लिए तैयार होते हो, देते हो बेसिकली, चाहे आपकी एक्टिविटी हो वो भी करते हो। तो इनफैक्ट अभी आपने मेरे काफी मतलब मे भी थोड़ा थोड़ा फास्ट हो रहा है जैसे भी, तो हमने कर्म कांड की बात करी, निष्काम कर्म की बात करी, साकाम कर्म है, इसमें बहुत कुछ है। पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि अगर हम कंफ्यूज ना हो कि इतने सारे कैसे इसको समझें, तो हमें तीन चीजों में इसको अलग अलग तरह से तरीके से बांटा जा सकता है, पर हम तीन चीजों से अगर मोटा मोटा अगर हम सोचें समझने के लिए, कि तीन तरह के कर्म आप याद रखो। साकाम, सकाम कर्म, और जो क्या सकाम कर्म, विकर्मा एंड अकर्मा। सकाम मतलब जो कामनाएं हैं, आप पायस एक्टिविटीज कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, जैसे वहां जाने के लिए मटेरियल क्या कहते हैं ये स्वर्ग में जाना है, वो जाना है। और उसमें क्या है कि आपके पास पुण्य कर्म कर रहे हो, पुण्य कर्म कर रहे हो, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हो। सकाम का मतलब है जो चीज आप शास्त्रों के हिसाब से अलाउड है अगर वो कर रहे हो तो वो साकाम कर्म है। और उसके उल्टा है विकर्म, कि जो आप शास्त्रों के उल्टा कर रहे हैं, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो कुछ भी है, जो मतलब ज्यादा नॉन वेज है, जो भी वट एवर इज नॉट रिकमेंडेड इन द शास्त्र, जो वो काम करते हो तो वो विकर्म है, गलत काम। उसमें क्या है कि आपको पाप मिलेगा, पाप मिलेगा तो उसके रिजल्ट मिले, भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो हमने काम कर्म करा उसमें नहीं मिलेगा, उसमें पुण्य मिलेगा, तो पुण्य में भी आपको भुगतना पड़ेगा, शरीर तो लेना पड़ेगा, दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा कर्म मिला तो भी, और खराब मिला तो भी। तो बेस्ट ये है कि आप अकर्म करो, अकर्म। अगर उस स्टेज पे हम धीरे धीरे, दैट्स मतलब लेटर स्टेज जो आप कर सकते हो। अकर्म मीन्स न्यूट्रल, एक तरह समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि न्यूट्रल है, ना तो आपको अच्छे कर्म का बंधन मिलेगा ना बुरे कर्म का बंधन मिलेगा। जो आप जैसे अपने लिए नहीं करते, ना अच्छा ना बुरा, वो आप भगवान के बिहाफ पे करते हो, भगवान के सेवा के लिए करते हो, जब उनको सेंटर में रख के करते हो, वो अकर्म होते हैं। उसकी बहुत बार हमने एग्जांपल दिया है कि जो जैसे एक आर्मी ऑफिसर की एग्जांपल दी जाती है अक्सर, कि अगर एक आर्मी ऑफिसर है, वो इंडिया पाकिस्तान का अगर मान लो वॉर हो गई, तो अगर वो जाता है और वहां पे जाके ही किल्स में भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, तो जब वो वॉर खत्म हुई, जब भी फिनिश हुई, तो उसके बाद उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पनिशमेंट देती है, या क्या कहते हैं उसको, अवार्ड मिलता है। क्योंकि उसको अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने क्या करा, उसने अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने मास्टर के लिए, अपने जो भी उनका मालिक है, जो मास्टर है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम करा, उसके लिए अच्छा काम करा, उनके बिहाफ पे काम करा। तो लेकिन वही बंदा, सेम आर्मी ऑफिसर, ही कम्स होम फॉर हॉलीडेज, हॉलीडेज के लिए आता है, गांव जाता है, वहां उसके पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, उसको मार देता है। उस तब तो पहले उसने हजारों लोगों को मारा, अब उसने एक को ही मारा है, तो अब उसको इनाम मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, एवरीबडी नोज कि हमें पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? फर्क क्या था कि फर्क, पहला वाला काम उसने अपने लिए नहीं करा, अपनी ड्यूटी या जो भी जिस मास्टर के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए करा, और दूसरा उसने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपनी उसको ग्रेटिफाई करने के लिए करा, तो इसलिए उसमें बंधन में फंस गया, उसमें पनिशमेंट मिली। ऐसे जो काम हम चाहे अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, जो अपने लिए करेंगे, अपने आप को सेंटर में रखते हुए, वो उसमें हम बंधन में फंसेंगे। कभी हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए कि मैं तो बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। बहुत लोग सुनते हैं कि ये क्या, जैसे हमने पीछे यज्ञ की बात करी या कुछ और भी, ये क्या वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ दिस। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी लोगों को इतना विश्वास नहीं कि अच्छे कर्म मतलब किसी का भला कर दो, किसी को गरीब को दे दो पैसा, वो दे दो, उसके लिए मना नहीं करते। इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने में लोग कभी नहीं कहते कि वो मत काम करो, बट आइडिया इज कि आप परमानेंट काम करो, कुछ भी परमानेंट, जिससे उसको एक्चुअल बेनिफिट मिले। You want to add something?
एक्चुअली वही है कि हम लोग कई बार वैसे बहुत हैवी लग सकता है कि इतना कुछ ये कौन समझेगा, बहुत बहुत कुछ है, मतलब ये कर्म वो कर्म इतनी तरह का, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर हमें एसेंस लेना है हर चीज का। कृष्णा एसेंस हमें देंगे, हमें बार बार हम रेगुलरली सुनेंगे और एसोसिएशन लेंगे भक्तों का, तो हमें ये एक दूसरे के संग से हमें पढ़ के जब इकट्ठे साथ में पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो हम समझ पाते हैं। आप हम एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे और उत्तर मिलेंगे और उस तरह करके। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर हम अगर कोई, व्हाट इफ अ पर्सन इज ओवरली अटैच्ड टू मटेरियल लाइफ। अगर कोई भौतिक जीवन के साथ बहुत ज्यादा बुरी तरह, जो कि मेरी बात है कि हम हमारी बात कर रहे हैं कि हम कितना ज्यादा उसके साथ भौतिक बंधन में बंधे हुए हैं, हम लोगों की कितनी अटैचमेंट्स हैं और हम निष्काम कर्म योग नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए कृष्णा ये जो 10वें श्लोका से लेके 16वें श्लोक तक सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस जो हैं योगा लेडर की, जो योगा की पूरी सीढ़ी है कि हाँ ये कर्म कांड है, कर्म योग है, और ज्ञान कांड है, ज्ञान योग है, और ये सब, तो ये सब समझा रहे हो। और फिर भक्ति योग है अल्टीमेटली। और पर ये सारा बताने का पर्पस क्या है कि हम कोई किसी भी स्टेज पे है तो वो डिस्करेज नहीं हो, उसको ग्रेजुअली वो जा सकता है, पर और उसको एटलीस्ट गोल का पता हो कि ओके ये गोल है। अगर हमें उसका पता ही नहीं होगा तो कैसे, से हम गांव में रह रहे हैं और अगर हमें पता ही नहीं है कि अच्छा डॉक्टरी की पढ़ाई भी है, तो हम कैसे अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे? वो हम सोचेंगे बस इतनी ही होती है, ये स्कूल में बस 8वीं तक पढ़ना होता है या 10वीं तक इतनी ही पढ़ाई होती है, तो हम कैसे उसको समझेंगे ही कैसे? या गोल को कैसे समझेंगे कि डॉक्टर बनना है या हमें कुछ कुछ हासिल करना है या कुछ हम, तो उसमें हमारे को गोल क्लियर होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें सारे अलग अलग सीढ़ियां जो हैं, स्टेप्स कृष्णा हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। और साथ में अब उसका तरीका ये है कि हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ें, और दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि कोई भक्त भगवान की कृपा से हमारे अंदर कोई थोड़ी सी भी इच्छा हो अगर जानने की, तो आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि आपकी थोड़ी सी इच्छा हुई, कि कोई वजह हुई, कोई भक्त में भी आपके आपका भक्त के साथ कोई कनेक्शन किसी तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, किसी तरीके से आप जुड़े, तो आपको भगवान ने आपके लिए ये अरेंज किया, तो या हमारे लिए अरेंज किया, तो वो इसी इसी तरह से होता है। और भक्त की अगर इंटरवेंशन हो जाए तो भगवान बहुत जल्दी और भी जल्दी हम उस सीढ़ी पे, मतलब जैसे होता है ना डबल प्रमोशन हो जाती है क्लास की, या हम कई सीढ़ियां पार कर सकते हैं एक साथ ही, अगर हमें किसी भक्त का संग मिल जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम एक तरीका है कि हम स्टेप बाय स्टेप, वही बात कि हम एक एक स्टेप करके चढ़ें। और उससे क्या होगा कि हमारी जो एडवांसमेंट है, जो हमारी तरक्की है, वो हम पर निर्भर करेगी कि हम कैसे उस पे एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे। वो अब मुझसे चला नहीं जा रहा, अभी तो मेरा अभी तो ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, अगला वाला स्टेप तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो हम फिर गाइडेंस देख रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं या कुछ, पर हम अपनी अपने ही ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपने आत्मविश्वास के ऊपर ही निर्भर हैं। बट जो कृष्णा को की सर्विस में लग जाता है, उसको अपना गोल मन बना लेता है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो उसको सीधा भगवान की कृपा एकदम से प्राप्त हो जाती है। मतलब स्पेशल मिलेगी ना अगर हम कुछ करेंगे किसी के लिए, तो नेचुरल है, क्योंकि भगवान भी सुप्रीम पर्सन है, जैसे हम पर्सन है। आपके लिए कोई कुछ करे, मेरे लिए कोई कुछ करे, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मेरा बच्चा भी भले ही मुझसे ही पैसे लेके मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से अगर हम भगवान की कृपा, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो भगवान की कृपा मिलेगी, स्पेशल मिलेगी हमें। तो उससे हमारी तरक्की जो है सेल्फ रियलाइजेशन की, या जो हमारा गोल को प्राप्त करने की, वो जल्दी होगी। सो ये था। और जो दूसरा, जो अपने आप करने की कोशिश कर रहा है, जो भक्त नहीं है या शास्त्रों को नहीं फॉलो कर रहा, विकर्म कर रहा है, तो उसको कृपा नहीं प्राप्त होगी। वो अपने आप से ही माया से जूझता रहेगा। और उसको जैसे होता है ना कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एक्चुअली हम तो एटलीस्ट करते हैं कि कैसे चारों तरफ से हमें, अभी आज कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इतनी प्रॉब्लम्स, और विद द एडवांसमेंट ऑफ कलयुग ये बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, हमें सबको ये अच्छे से मालूम है।
तो ऊपर अगर भगवान की सेवा में लग जाएं तो भगवान कहते हैं कि अरे ये तो मेरा सर्वेंट है, इसका तो मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो भगवान किसी के लिए भी जैसे कहते हैं ना, वो कभी भी किसी का थोड़ा सा भी कुछ किया हुआ भूलते नहीं है। तो इसलिए जुड़ना जरूरी है। जो अभी प्रभु जी ने बोला, भी आपसे शेयर करा, जुड़ने की बात, योगा के कर्म कांड से कर्म योगा तक आना है। तो योग मीन्स कनेक्शन और जुड़ना। तो अगर हम डेली भी देखें अपनी लाइफ में, जैसे हम बचपन से करते आए थे, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि हम बचपन से कि हम पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हमें उसका पर्पस नहीं मालूम था कि पर्पस क्या है। हमें ये पता था ये अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? अच्छा का मतलब है कि हमें भगवान से जुड़ना है। जुड़ना का मतलब एक प्रेम का रिश्ता स्थापित करना है, कि हमें एक्चुअल भगवान के लिए वो फीलिंग्स हो कि ओके भगवान आपने मेरे लिए हमेशा किया ही किया है, आज मुझे भी एक जन्म में तो ऐसा हो कि मैं आपके लिए भी मैं कुछ करूं। तो एक जन्म हम भगवान की सेवा में लगाएं। उसके लिए ये मतलब नहीं है कि हमने अपने कर्म अपनी नौकरी छोड़नी है, अपना बिजनेस छोड़ना है, या अपना कोई हाउस वाइफ है तो उसको अपना घर बार छोड़ के और किसी आश्रम में जाके रहना है, या कुछ गुरु जी के पास सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये मतलब नहीं है। अपनी ड्यूटी करते हुए जो है, जिस सिचुएशन में है उसी में हमें करना है उसको, और वो पॉसिबल है विद प्रॉपर गाइडेंस। 10th verse is 10th verse. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." Uh, shall I continue? Because we will have to, I think it's already at 15, and then we'll take some questions. 5-10 minutes में Okay. The 11th verse, the demigods. अच्छा, let me just 1 second, इसमें ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। जैसे 10th में भगवान बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि जब इन द बिगनिंग में उन्होंने सारे भेजा, मटेरियल भेजा। तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे जो पेरेंट होता है, कोई भी जो फादर है या मदर है, पेरेंट है, तो वो बहुत मर्सीफुल होते हैं। तो हम लोग क्या है कि हम लोग भगवान के बच्चे हैं, ओरिजिनली हम वहीं रहते थे, सब कुछ थे। लेकिन जब हम उनकी बात नहीं मानते तो भगवान को पता है कि हम खुश नहीं रह सकते अलग। पर कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे आजकल के हमारे कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने मामा पापा के ज्यादा इंडिपेंडेंट रहूंगा तो खुश रहूंगा। तो भगवान से भी हमने ऐसा ही करा, क्योंकि सिंस वी वांटेड टू कम बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हमें वो शौक था या जो भी था, एंजॉय सेपरेटली करना चाहते थे भगवान से। तो भगवान सिर्फ फिर भी क्योंकि एज ए परम पिता हमारे फादर हैं, तो उन्होंने सब कुछ हमें ले भेजा, यहाँ पे दिया साथ में। क्या वेदास दिए साथ में, जैसे सारा मटेरियल सब कुछ दिया, तो वेदास दिए ताकि हम उनको समझ सकें। और साथ में क्या दिया, जो यज्ञ करने का, जो सेक्रीफाइस करने का तरीका बताया, तो ताकि हम जो हमारी डिजायर्स है साथ साथ हम पूरी भी कर सकें। जैसे हम अपने बच्चों को किसी को मान लो आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, कहीं भी से यूरोप भेजा, ऑस्ट्रेलिया भेजा, तो उनको हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहे। पर जब वो जाना ही चाहता है तो हम सोचते हैं अच्छा हम अरेंजमेंट कर देते हैं, वहाँ बेटा वहाँ जाके आप अपने इस अंकल को मिल लेना, मैंने पैसा भी देते हैं उनको, सब कुछ करते हैं, उनकी एडमिशन फीस ये वो यस सब कुछ करते हैं। तो ऐसे जो हम तो एक मटेरियल वर्ल्ड में होते हुए कर सकते हैं, तो भगवान तो हमारे परम पिता है, तो ही डज एवरीथिंग फॉर अस। 11th verse, the demigods being pleased by sacrifices will also please you, and thus by cooperation between men and demigods prosperity will reign for all. इसमें बेसिकली कॉपरेशन की बात देवी कर रहे हैं, देवताओं। देवी देवताओं को कहते हैं कॉपरेट करो। बेसिकली हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं भगवान के। अगर आप, कई बार क्या होता है, कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि अच्छा हमारे बाप का पैसा है, गॉड भगवान के हमारे फादर हैं, तो उसके लिए हम कॉपरेशन किसी और से क्यों कर रहे हैं या क्या करें, हम इंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेडली। लेकिन वो मतलब भगवान हमें ट्रेनिंग, उनका पर्पस, मेन पर्पस है कि हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि हम धीरे धीरे, क्योंकि प्योरीफाई तभी होंगे अगर हमें रेगुलेशन आएगी। थोड़ा थोड़ा पहले हमने अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, कुछ ये जो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान ने बना के दिए उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो हम उसमें आगे बढ़ के खुश हो सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। कॉपरेशन की बात करते हैं कि देवी देवताओं को अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा।
जैसे हम आप मान लो किसी को बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, तो आपने किसी को लोकल गार्डियन बना दिया वहां पे, वो भी आपकी फैमिली का मेंबर ही है जो कुछ है। तो अगर आप बच्चे को बोलते हो कि अच्छा बेटा आप अंकल के पास चले जाना, जब भी आपको चाहिए तो टेक समथिंग फॉर हिम, उससे अच्छे से बात करना, उनसे स्पेंड सम टाइम विद देम और व्हाटएवर, तो आप आपकी सारी डिजायर पूरी होंगी। अगर आप वहां जाके बच्चा क्या करता है कि उनको गालियां देता हो या ना ही मानता, एक्नॉलेज नहीं करेगा, तो देन दे विल नॉट आल्सो कोऑपरेट, इवन चाहे वो फैमिली के मेंबर है। तो दैट्स व्हाई लॉर्ड कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट करो देव डेमीगॉड्स के साथ। 12th verse. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna or sacrifice, supply all necessities to man. But he who enjoys these gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. हमें बुरा लग सकता है कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम डेमीगॉड्स को, देवी देवता को ऑफर नहीं करेंगे तो हमें थीफ बोला गया है। पर बेसिकली इसमें भी भगवान की जो प्लान है वो यही है कि हमें प्योरीफाई करना चाहते हैं, हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि हम केयरफुल रहें। और हमारा ही 15वें चैप्टर 15 का शायद 15 वर्स है कि वो ही इज द बिगेस्ट वेल विशर, हमारे लिए सबसे बड़े वेल विशर हैं, कि जो हमारा भला चाहते हैं। तो अगर हम लोग अगर जो रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं करेंगे तो हम लोग इसी इंटेंगलमेंट में फंसे रहेंगे, बोझ में बजे रहेंगे। इसलिए वो बोलते हैं इसमें कि ठीक हो। इसकी बहुत सारे एग्जांपल है, बट मे बी वी कैन स्किप दैट। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझने के लिए कि हमने बहुत सारी चीजें आजकल ग्रांटेड ले ली, फॉर ग्रांटेड ले ली हैं कि हम जन्मों जन्मों से, और मतलब इस जन्म में भी, कि हमें लगता है कि ये सन और हमें दूध या जो ग्रेन्स हैं या चावल है, हर चीज हमें ऐसे ही मिल रही है, फ्रूट्स हैं, और जो चीजें फैक्ट्रीज भी प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी हमें मालूम है कि सन पे और ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज पे, वाटर है और इन सब पे डिपेंडेंट हैं। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? देवी देवताओं से आ रहे हैं। और देवी देवता किसके संरक्षण में या किसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं? सुप्रीम भगवान जो है, मतलब उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता जिसे कहते हैं। तो वो भगवान के अंडर काम, भगवान के सैंक्शन से काम कर रहे हैं। भगवान ने सबको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है कि ये तुम्हारा काम है। अगर हम जैसे अब ये हाथ पे उठा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक देवी देवता है, पलक झपकने के लिए भी एक देवी देवता है। हम देखते हैं ना कि कभी पैरालिसिस हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बिकॉज वो जो अल्टीमेट कंट्रोल जहां से सैंक्शन हो रहा था वो अब बंद हो गया है। तो ये सब चीजें तो, और हम इन सबको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपने देखा, आप मतलब ये इतनी कॉमन सेंस की चीज है कि हम जैसे गवर्नमेंट से कितने टैक्सेस हमें पे करने पड़ते हैं फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रोड टैक्स, टोल टैक्स, दिस दैट, मतलब कितना कुछ है। तो इजंट इट नेचुरल कि हमें वो जो देवी देवताओं से इतना मिल रहा है तो हमें भी कुछ देना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ माँ बाप के साथ होता है कि कुछ नहीं वो एक्सपेक्ट करते। वहां पे सिर्फ हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे बच्चे बन के माँ बाप के लिए करें, बट माँ बाप जो सुप्रीम भगवान है वो नहीं एक्सपेक्ट करते, बट जो देवी देवता हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट ऑफर करें। और वो उसका क्या सब दिक्कत है अभी कलयुग में, वो पॉसिबल है नहीं, वो सब आगे जाके डिस्कस होगा। पूरा आपको पता चलेगा कि उसको भी सोल्यूशन है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं को हम कैसे करेंगे भला? हम खुशी नहीं कर सकते हैं। तो हम चोर कहलाएंगे अगर हम उनको ये सब कुछ ऐसे यूज करेंगे बिना अपना ग्रेटिट्यूड दिखाए। 13, 14 एंड 15 वर्सेस हम पढ़ रहे हैं, and 16. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. It's a very important verse. I will read again. तीसरे चैप्टर का 13th verse. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. 14th verse. All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna or sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. And the 15th verse is
Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. 16th verse is, my dear Arjun, a man who does not follow this prescribed Vedic system of sacrifice certainly leads a life of sin, for a person delighting only in the senses lives in vain. जो हमारा अभी हमने 4 पढ़े ट्रांसलेशन, बेसिकली इसमें भगवान जो हैं वो हमें एक तो सबसे बड़ी चीज कह रहे हैं कि हम प्रसादम की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें भगवान को हर चीज जो भी हम करते हैं, नहीं तो मतलब हम ऑफर करके लेना चाहिए। तो उसमें जैसे डिवोटीज हैं वो हमेशा, जो भी आपने देखा होगा, जैसे हमें अकर्म की बात करी, आर्मी ऑफिसर वाली एग्जांपल दी, कि अगर हम भगवान को भोग लगा के कुछ भी लेते हैं, जो मतलब कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हम कर सकते हैं, जो अलाउड है शास्त्रा के हिसाब से, जो भगवान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हमें कोई पाप नहीं लगता, हम वो कर्म वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो ऐसे कर्म करें, जो ऐसे काम करें जिसमें हम बंधन में ना फंसे। तो मतलब भोग की या प्रसाद लेने की, मतलब इट्स नॉट अबाउट वेजिटेरियनिज्म ओनली कि हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा के वो अगर हम लेते हैं तो हमें कभी भी बंधन में नहीं फंसेंगे, किसी भी बंधन में नहीं फंसेंगे। और जो प्रसाद है, इसको एग्जांपल देते हैं कि इट्स लाइक ए वैक्सीन, वो हमें बचा के रखती है। जैसे हमें आज कोरोना की वैक्सीन बन रही है या कोई और बन रही है, तो अगर हम प्रसाद लेते हैं तो जो भी हमारी मतलब हमें नहीं तो सिंस हो सकते थे, उससे हमें बचाते हैं, और भगवान की सेवा का मतलब प्रेम के लिए हम हेल्प होती है। पर प्रसाद का मतलब वो नहीं होता कि हम अक्सर सोचते हैं कि वो हलवा बना है या खीर बनी है और थोड़ा सा एक चम्मच मिल गया, वो प्रसाद, हलवा प्रसाद, वो प्रसाद होता है। प्रसाद का मतलब हम जो भी ग्रहण करें, जो भी अन्न पाए, फ्रूट पाए, कुछ भी खाते हैं, हम पहले भगवान को ऑफर करें, क्योंकि उन्होंने दिया है, उनको प्रेम से उनको ऑफर करें, और वो उसको अपनी आंखों से पा लेते हैं, वो सिर्फ ग्लांस करने से भी पा लेते हैं। भगवान की इंद्रियां हमारी तरह नहीं है, तो वो सब हर किसी भी इंद्री से प्रसाद को पा सकते हैं, उसको भोग को स्वीकार करते हैं, और वो जो हम प्रेम से उनको ऑफर करते हैं तो वो प्रेम लौटाते हैं हमें, और उस प्रेम पूर्वक जो उन्होंने लौटाया, तो वो जो छोड़ा, तो वो हम उसको जब पाते हैं तो हमारे अंदर कितना हमें उसका मतलब प्रेम ही प्रेम हमारे अंदर आएगा, तो हम सब चारों तरफ हम वही फैलाएंगे फिर। तो हम एक बार अभी 16 तक की आज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 8:25 हो गए हैं। तो कल से हम 17 से नेक्स्ट जितने वर्ष शुरू करेंगे। तो मे बी वी हैव सम टाइम, अगर कुछ एनी क्वेश्चंस और एनी ऑब्जर्वेशन, एनी कमेंट। सॉरी इट वाज लाइक टू फास्ट, मे बी मुझे हमें लगता है कि हम एक कुछ वर्ड्स पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते थे, बट क्योंकि हम इसको बेसिकली ओवरव्यू आप सबको मिल रहा है, और धीरे धीरे मे बी दोबारा से आप फिर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो, या चैट में डालना चाहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। आशा जी। नहीं, नो, just by chance. अच्छा, कोई प्रॉब्लम। Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, Hare there is Krishna. one question. जी। There is one question from Krishna Prasad, Prabhu. Okay. He's asking, what type of sacrifice should we perform? Is it fasting? Does that mean fasting? What kind of sacrifice we should perform? See, जो जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है यही है कि अगर आप सेक्रीफाइस मतलब शुरू में आप कुछ भी करोगे, अगर भगवान के लिए हम फास्टिंग भी करते हैं, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, पर मेन अकेला फास्टिंग का आपकी कॉन्शियसनेस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर रहे हो वो एक्सेप्ट करते हैं, जबकि मतलब फास्टिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा,
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम अगर सेक्रीफाइस की बात कर रहे हो, अगर सेक्रीफाइस की कर रहे हो तो कलयुग में हमें हरि नाम को लेना, हियरिंग करना, भगवान के बारे सुनना, और फिर ये एकादशी, जैसे एकादशी का व्रत रखने की बात रिकमेंड करी जाती है, तो अगर वो रखते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब अकेला हम फास्टिंग तो अगर हम अपने हेल्थ के इशू के लिए कर सकते हैं, कई बार होता है कि मेरे को हेल्थ के लिए कर रहे हैं, पर कॉन्शियसनेस भगवान को प्लीज करने की नहीं है, भगवान को खुश करने की नहीं है, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं है। और अगर भगवान का जहां तक प्लेजर के लिए आप कुछ भी करोगे, छोटा से छोटा एक्ट भी करोगे, तो भगवान खुश हो सकते हैं, हो जाते हैं। और चाहे वो आप फास्टिंग हो, पर सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो कलयुग में है वो भगवान का नाम लेना और सुनना, मतलब हरे नाम संकीर्तन, संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ। बेसिकली आप चैंटिंग जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो 16 वर्ड्स का ये मंत्र है, अगर हम इसको लेंगे कि वो कलयुग में बोला गया है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और हीरिंग भगवान के बारे में करेंगे, और साथ साथ एकादशी व्रत रखें, व्रत रखना है तो क्योंकि उसका भगवान से जोड़ के रखना है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। जैसे डेमी गॉड्स को खुश करने के लिए, देवी देवता को खुश करने के लिए भी रख सकते हो, पर फिर वो कर्म कांड की कैटेगरी में आएगा, और फिर हमें उसका मटेरियल बेनिफिट तो मिल जाएगा, मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा कि हमें कुछ घर के लिए, बिजनेस के लिए, किसी और के लिए, लेकिन उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट तभी मिलेगा अगर हम भगवान से, लॉर्ड से जोड़, लॉर्ड कृष्णा से जोड़ के करेंगे। उसके अलावा अगर हम गहराई से सोचें तो ये तो है ही जो हमारा फ्रेमवर्क है कि, और संकीर्तन यज्ञ जो टॉप मोस्ट है। और उसके अलावा जो एक भक्त के जीवन में, भक्त कौन है? जो भगवान को भगवान के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश कर रहा है, भगवान जैसे कह रहे हैं भगवत गीता में, उसको धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको कुछ भी उसके लिए करना, भगवान को ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी एक्शन करते हैं कि अच्छा हमने कुछ भी करना है तो भगवान को ध्यान में रखते हुए कि भगवान को प्रसन्न करेगा क्या मैं ऐसे करूं नहीं करूं, धीरे धीरे इट्स द प्रैक्टिस। हम भूल जाएंगे, अभी हम क्लास में एकदम चार्ज हो जाएंगे, हम भी चार्ज हो जाएंगे कि हमने आपसे ये शेयर करा, और हम शायद एक दो दिन ऐसे, और फिर धीरे धीरे वो जब संग नहीं हो रहता फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। तो जब हम कुछ भी हम भगवान को ध्यान में रखते हुए करते हैं वो भी एक सैक्रिफाइस ही है, क्योंकि हम अपना जो नॉर्मल हमारी कंडीशनिंग है, हम इतने जन्मों से हम अपने आप के लिए करते रहे हैं कि हम सब कुछ हमने भोगना है, हम ही ईश्वर हैं। और हम ही अपने आप को एक तरीके से सटली या ग्रॉसली कृष्णा ही मान रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि बस मुझे एंजॉय करना है सब कुछ, हाँ मेरे ये ना सब कुछ मेरे हिसाब से। हस्बैंड चाह रहा है कि वाइफ मेरे हिसाब से हर चीज फॉलो करे जैसे मैं चाहता हूँ, या बच्चे चाहते हैं कि मेरी बात माने, या हम सोचते हैं कि बच्चे हमारी बात माने। हम कंट्रोलर, छोटे छोटे कंट्रोलर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम भगवान को ध्यान में रखते हुए और वैसा ही करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक स्ट्रगल होगी, तो जब स्ट्रगल होगी तो वो भी एक सैक्रिफाइस ही होगा हमारे लिए। जैसे भक्त हैं वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, या सुबह उठ के जल्दी माला करते हैं, जप करते हैं, तो वो भी एक सैक्रिफाइस है। तो ये सब सैक्रिफाइस का ही पार्ट है। We hope that answers the question. Anything else? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने ये बताया कि अगर हम भक्ति मार्ग पे जाते हैं तो हमें कोई लॉस नहीं है उसमें। तो लेट्स से कि इस जन्म में हम 10% भी कुछ भी कर पाते हैं और 10% का पुण्य भी कमा पाते हैं, तो इट विल रिमेन विद यू एज 10%, एंड मे बी फॉर अदर at the later stage this 10% will benefit you. सो व्हाट मतलब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि एक तो हमने ये भी पढ़ा था कि बॉडी जो है वो तो नहीं रहती है, और आत्मा जो है वो हमेशा रहती है, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें अगले जन्म में हमारी आत्मा, जैसे मैं अंशुल हूँ, तो वो अंशुल ही बन के सामने आएगी और उसमें 10% का मेरा बेनिफिट सामने मिलेगा, या मतलब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? अंशुल जी, ऐसा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जो इसमें बोला गया है कि अगर भगवान कहते हैं कि जितना मेरा भक्त को, अर्जुन को बोलते हैं डिक्लेयर कर दो कि जिसमें का जो भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो जो नाश आपने बोला है बॉडी का होता है, बॉडी तो जाएगी जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपने अगला जन्म देखा, अगर होगा आपका अंशुल, नाम अंशुल नहीं होगा, बॉडी हो सकता है अंशुल की नहीं होगी, कोई
जिसमें भी आपकी अटैचमेंट रही है, जब कुछ है तो आपकी बॉडी डिफरेंट मिल सकती है आपको। और लेकिन जो आपकी जो नेक्स्ट कॉन्शियसनेस है, जैसे आपने देखा होगा कि इस संसार में बहुत सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते ना जब पैदा होते हैं, कि कोई किसी भक्त के घर में पैदा हो रहा है, कोई बिल्कुल गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बिल्कुल नास्तिक है, जैसे एथिस्ट है। तो सबकी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है। तो वो क्या होती है कि हमारी जो बॉडी है, जब हमारी डेथ होती है तो उसमें एक्चुअली तीन तीन पार्ट हैं। आपने शायद आपको धीरे धीरे इसमें आइडिया होगा कि हमारी सटल बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी होती है और आत्मा होती है। तीनों तीनों चीज होती हैं। तो जो आपने जितनी भक्ति कर ली, जो जो आपकी सटल बॉडी है जिसमें माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस होती है, ये आपका एक तरह का जैसे होता है ना कि पिक्चर बन गई, एक आपका पेंटिंग का पार्ट है, बन गया, वो आगे कैरी होगा। तो जो सोल है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है, वो सोल को अगली बॉडी में लेके जाएगी, जो भी आपको शरीर मिलेगा उसमें लेके जाएगी। तो और आपकी कॉन्शियसनेस उतनी ही मतलब डेवलप होगी। और आपने जहां तक बोला पुण्य, पुण्य नहीं, एक्चुअली इसको हम भक्ति बोलते हैं, क्योंकि पुण्य का मतलब है कि आपको उसका मटेरियल बेनिफिट ही मिलेगा, आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। लेकिन जो फाइनली जो आपको जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो भक्ति का, चाहे वो मतलब इन वर्ड्स में नहीं जाना क्योंकि अभी तो इनिशियली आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करने में, पर मेन जो क्रक्स वही है कि जितना भी आप कर लोगे, अगला जन्म जैसा भी मिलेगा वो उस कॉन्शियसनेस जितनी डेवलप होगी उससे शुरू होगा। मतलब आज जितनी अगर आपने मटेरियल वर्ल्ड की हमने एग्जांपल दी कि जो भी खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म नहीं होगा। आपने जितना कर लिया वो आपको बॉडी से किसी भक्त के घर में मिल गई या किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में मिल गई, जहां पे आपको चांस मिलेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे कर सके। बहुत सारी दुनिया आज चाहते हुए भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो दाल रोटी से ऊपर उठ ही नहीं पाती, उनके पास और टाइम नहीं है, फंसे उलझन है। जो हम जैसे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की बात करते हैं, लोग सोचते हैं उसमें कैसे भक्ति हो जाएगी। हो सकता है ना हो, लेकिन चांस, अगर इफ यू वांट टू डू इट यू विल बी एबल टू डू इट। आपको चांस मिलेगा, आपके पास कोई इतने ज्यादा बंधन नहीं होंगे। और प्लस इसमें यह भी बोला जाता है कि मैंने एग्जांपल देने के लिए हमने बोल दिया कि 10% करो, पर हमें कोशिश करनी चाहिए जितना मैक्सिमम कर सकें, क्योंकि कलयुग जो है वो अल्टीमेटली आने वाला समय और भी खराब आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम पूरा नहीं करते या जितना भी करते हैं तो अल्टीमेटली और डिफिकल्ट होता जाएगा इसको। मतलब जितना जल्दी इस संसार से निकल जाओ, मतलब निकल जाने का मतलब नहीं कि बॉडी मतलब खत्म होगी तो वो हम निकल गए, वो तो हम फिर दोबारा जन्म ले लेंगे। हम भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, उनके शेल्टर में जाने के लिए हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए इस दिन। I hope it answers, or you have, if it's not clarified, maybe I can try to do इसमें it more. बेसिकली हमारा जो कॉन्शियसनेस है अंशुल प्रभु, वो हम नेक्स्ट जन्म में जैसे बताया कि कैरी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि एक भिखारी है, वो कैसे करेगा भक्ति, उसको वो समझ ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है। एक जिसके पास कम पैसा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो फिर भी अगर उसमें संस्कार हुए, हो सकता है उसके लिए वो उसके पिछले जन्मों के संस्कार हुए, जैसे पिछले जन्म में उसने कुछ भक्ति करी तो उसे कैरी फॉरवर्ड करी अगले जन्म में, और उसको अगर तो उसको नेचुरल इंक्लिनेशन होगी। जैसे आप देखते हो कि एक ही परिवार में एक बच्चा है, किसी वो कहता है, एक दो बच्चे हैं, एक कहता है कि मुझे बचपन में पैदा होते से ही, वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट उसको होता है कि मुझे तो आलू अच्छा लगता है, एक कहता है मुझे आलू अच्छा ही नहीं लगता, या मुझे प्याज अच्छा नहीं लगता, या टमाटर अच्छा नहीं लगता, कुछ भी निकाल दो इसमें से, क्योंकि उसको पिछले जन्म के इंप्रेशंस हैं, ये भी उसी से है। तो उसी तरह भक्ति का भी, तो उसको नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, और उसको जो भी उसके लिए सूटेबल होगा एनवायरनमेंट, भगवान उसको मतलब या जो भगवान की जो सिस्टम बना हुआ है, तो वो उसको उसी में लेके जाएगा, उसी वैसे ही एनवायरनमेंट उसको उसके लिए मिलेगा, अरेंज होगा। नहीं एक्चुअली इसमें आई हैव रेड समवेयर, एक तो ये भी, एक तो आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, एंड एक ये भी बात थी जो मैंने पढ़ा था इन द बुक्स इटसेल्फ कि व्हेन वी से कि आत्मा ना मरती है, ना उसको कोई काट सकता है, ना कोई उसको मार सकता है, ना कोई उसको जला सकता है। तो आइडली जो चीज मरी नहीं है वो चीज जीवित भी नहीं हो सकती है, राइट। तो हम एक दूसरी तरफ से हम बोल रहे हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या कुछ भी है, और हमें पुराने जन्म का हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। सो आइडली व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम इस जन्म में जो भी भक्ति करते हैं, जिसका भी जितना भी उसका बेनिफिट मिलता है वो पास ऑन हो जाएगा, बट लेकिन हमें जब वो याद ही नहीं रहेगा, और आत्मा तो जब मर ही नहीं रही है तो वो जीवित होना या दूसरे शरीर में जाने का कोई
शायद शायद मेरे हिसाब से मतलब ही नहीं बनता है। तो वो ये दोनों चीजें आई थिंक दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू प्रेजेंट करती हैं फॉर एनी व्हेन वी रीड और व्हेन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंगल कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि एक तरफ कि आपको नेक्स्ट जन्म में उसका बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरा ये है कि अगर हम ये भी देखें कि किसी कोई ये कहता है कि मुझे पुराने जन्म का अपना पता है, तो शायद वो गलत है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक या कोई भी प्रमाण नहीं है कि यार आपको पुराने जन्म का कुछ पता है, क्योंकि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि मुझे पता है कि मैं पिछले जन्म में कुछ भी था, लेकिन नो बडी कैन प्रूव दिस एज रॉन्ग और राइट। सो हाउ विल यू क्लासिफाई दिस एज और कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो आगे पास ऑन हो रहे हैं। हाँ, वो उसमें ये है कि एक तो जो आप कह रहे हो कि एक तो जो शरीर, जो आत्मा का नाश नहीं होता, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवत गीता में यही है। और बट शरीर का तो नाश होता है ना, शरीर हाँ का तो जी। नाश होता है। और वो आत्मा को बार 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 शरीर धारण करने पड़ते, शरीर में जाना पड़ता है उसको, शरीर क्योंकि उसकी इच्छाएं रह जाती हैं, तो उनको पूर्ण करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उसको बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। नो, इट इज। लेकिन हाँ। और सॉरी। उसको यू कैन ऐड एंड हाँ देन, तो वो एक पार्ट है। और दूसरा जो आप वो वाला पार्ट कह रहे हो कि उसको पिछले जन्म का याद नहीं रहता, पर वो भी हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स हैं ऐसे, हमने कितनी जगह हम पढ़ते हैं और करते हैं कि कोई किसी ने जन्म लिया, इस जन्म में फिर वो उसको उसको सारा याद था, तो उसको लेके गए छोटी सी बच्ची को, और उसको सारा गांव में और सब कुछ वो पता था। तो दीज आर नॉट लाइक जस्ट रूमर्स, और दिस इज, कई बार इसका मिसयूज भी होता है, बट ऐसे एक्चुअल भी हैं, साइंटिफिक बुक्स हैं और साइंटिफिक पूरे इसके प्रूफ भी हैं। अगर हम अच्छे से रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कि उनको पूरा याद था पिछले जन्म का और वो सब, बट वो याद रखना या नहीं रखना इज नॉट ऑफ रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस। मेन है कि वो उसको नेचुरल संस्कार होते हैं, याद रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो उसको, जैसे उसको कॉन्शियसनेस थी उसकी, वैसी ही उसकी जो डिजायर्स थी, उसको वैसा एटमोसफेयर मिला और उसको फिर से वो करने का मौका मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कुछ गलत करना है तो उसको वैसा ही एटमोसफियर मिल जाएगा और वो सब करता रहेगा, क्योंकि उसकी, भगवान कहते हैं अभी तो इसको और करना है, करने दो, ये और कर करके फिर इसमें से निकलेगा। पर अगर किसी को दूसरी तरफ है कि भक्ति करनी है या भगवान में इंटरेस्ट है या उसने, तो वो उसको आगे करने का भी, उसका भी मौका मिलेगा। या पर अंशुल, बेसिकली आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा आपको जो लग रहा है वो ये है कि हमें कैसे पता कि वो आत्मा अगले जन्म में गई नहीं गई। जो आप साथ में ये भी करेक्ट। वर्ड यूज कर रहे हो कि उसमें कोई आत्मा जिंदा भी नहीं है। तो हम्म। आत्मा का, जो भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होती, पर दैट डजंट मीन हम्म। कि आत्मा नहीं है। आत्मा तो रहती है। आत्मा का जन्म नहीं होता कि वो हमेशा एक जगह से मूव हमेशा कर जाए, जितनी मतलब करोड़ों अरबों या जो भी शरीर उसी की वजह से उसी चलते हैं। उसी के वजह से जो चलता है। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर नहीं चलेगा। तो वो आत्मा मूव करती है, पर वो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फेथ। और फेथ कैसे एस्टेब्लिश होता है? फेथ आपको ऐसे मैं कहूंगा या कोई कहेगा तो नहीं मिलेगा। बट क्या होता है कि आपको शुरू में एक छोटा सा फेथ करके प्रोसेस शुरू हो, अगर आप थियोरेटिकली करोगे, मान लें। थ्योरेटिकली मान लेना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तो आपको अपने आप उसके एनेक्डोट्स और अपने आप उसके कुछ मिलेंगे जिससे आपको फेथ बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप यहाँ से, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से गाजियाबाद जाना चाहते हो, तो आपने गाड़ी निकाली, गाजियाबाद के लिए निकलना शुरू करा, आपने माइलस्टोन देखा से 40 किलोमीटर लिखा है। तो आप अगर थोड़ी देर जाओगे, 15 मिनट ड्राइव करने के बाद अगर वो 60 किलोमीटर का बोर्ड दिखते हो, तो आपको लगता है यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर आप 15 मिनट बाद वो 20 किलोमीटर जब 25 का रह जाता है 40 से, तो यू फील के आई एम गेटिंग द राइट, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप उन पे मतलब उन जैसे उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अगर बताने से उनसे नहीं होता, पर आप अगर प्रैक्टिस खुद करोगे तो आपको एनेक्डोट्स, वही जो है माइलस्टोन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स लाइक अभी वो, मतलब मैं इसके बारे में क्या बताऊं, बट इट्स पॉसिबल। मेन इज पॉसिबल के फेथ। होता है। या और हमें या जो भगवत गीता में जो लिखा है, सबसे पहले हमें ये ट्रस्ट अगर है कि ये भगवान से आई है, किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं दी है,
तो फिर उसका कोई क्वेश्चन नहीं है कि आज साइंटिस्ट की जितनी डिस्कवरीज, जितनी कुछ भी आ रही है, वो चेंज होती रहती है, हर रोज चेंज होती है। जब 10 साल बाद कुछ जो उन्होंने आज बोला था वो चेंज हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता आपने देखी होगी, अगर 5000 साल पहले वैलिड थी, आज भी है, और आज से 5 करोड़ साल बाद भी वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से निकली है। भगवान की इंद्रियां परफेक्ट हैं, हमारी तरह नहीं है कि हम लोगों की आज हमारा एक्सपीरियंस 20 साल पहले कुछ हुआ तो हमारे जो एक्सपीरियंस 10 साल बाद में हुए तो हमारा थिंकिंग चेंज होगी, हमारे फैक्ट्स चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन भगवत गीता चेंज नहीं होती, क्योंकि भगवान की जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, परफेक्ट हैं, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो उस बेसिस पे अगर आप करोगे, मतलब अगर आप इसको आगे थोड़ा सा भी परस्यू करते हो, तो यू आई मीन गेट द लाइक जो भी आपके आंसर्स अपने मिल जाएंगे। शुरू में आपको श्योर फेथ रखना पड़ता है, उसके श्योर बाद श्योर श्योर। नहीं नहीं, तो ऐसा कभी नहीं था कि भगवत गीता पे सवाल था या किसी भी चीज था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो ऑब्वियसली जब ये पढ़ना शुरू करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पहले श्लोक से जब भी शुरू करते हो तो आपके पास बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, क्या इसके 10 अलग अलग मीनिंग भी बन सकते हैं जब आप वो पढ़ते हो भगवत गीता के। तो वो मीनिंग से ही आई थिंक क्वेश्चन और आंसर्स निकल सकते हैं, और उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है कि क्या बिल्कुल। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या हम जो समझ रहे हैं, क्या वो सही तरीके से समझ रहे हैं, और क्या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन होना, नॉट टू क्वेश्चन, not to question Bhagavad Gita. It's like कि we should have an answer to what we are reading at least and आई understanding. गेट इट अंशुल। और क्वेश्चन होना में तो इट्स ए गुड साइन, क्योंकि अगर इंक्वायरी करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो इंक्विजिटिवनेस होगी, तो दैट्स ए गुड साइन कि दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इट। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो ये प्रोसेस है, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली दैट विल हेल्प यू। Sure, sure. Thank you so much. प्रेयरफुल रहिए और सारे आंसर्स मिलेंगे। और भक्त कभी और सेशंस करवाएंगे और सब है आपको। ये तो पूरा आप मतलब जुड़े रहेंगे तो ये नहीं कि ये इसका नाश, जैसे आपने कुछ थोड़ा भी कर लिया उसका बेनिफिट होना ही होना है, आज नहीं तो कल। ये नहीं कि अगले जन्म में होना है, इसी जन्म में होना है। तो Yeah. Sure. Thank you so much. थैंक यू। हरे कृष्णा। I think Anything? maybe we can take one last question if it's already 8:45. We are ahead of time. Otherwise, it's okay. We can meet tomorrow. हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। अगर भैया आप जैसे कहते हैं सोल न मरती है न पैदा होती है, एक शरीर छोड़ा दूसरे ने धारण कर लिया, तो ये नंबर ऑफ सोल्स इंक्रीज कैसे होती जा रही हैं? सोल्स इंक्रीज नहीं हो रही। आपको लगता होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम पहली बात तो उसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज होगी, हो सकता है आपके वो कहते हैं ना, एक 500 गज के घर के नीचे उससे ज्यादा पॉपुलेशन मिल जाएगी। आर यू ट्राइंग अंडरस्टैंडिंग कि आप, हम सिर्फ ह्यूमन जो पॉपुलेशन है और एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्स की कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने देखा कि आज इंडिया की पॉपुलेशन 100 साल पहले इतनी थी, अब इतनी बढ़ गई। पर उसमें ऐसा नहीं कि सोल्स बढ़ गई, सोल उतनी है। हमारी जर्नी चलती रहती है कि हमारा जैसे जैसे हमारे जो भी कर्म, वट एवर वी डू, लाइक आज जितना भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस हिसाब से हमें बर्थ मिलता है। और बर्थ इसी प्लेनेट में भी मिल सकता है, हायर प्लैनेट्स में मिल सकता है, लोअर प्लैनेट्स में मिल सकता है, या इवन इस यूनिवर्स के अलावा भी दूसरे यूनिवर्स में आप जा सकते हो। तो इसलिए ये नहीं है कि आपकी उस कैलकुलेशन की भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सोल्स बढ़ रही है। सोल्स हमेशा सेम रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मतलब पॉपुलेशन यूनिवर्सेस हैं। मतलब ये तो तो सोर्स वो छोड़ो ही, कैलकुलेट मतलब एक यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि इतने में हमें पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सोल्स बढ़ रही है। नहीं, आप कुछ और भी है, यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आई आस्क, अगर कुछ होएगा मन में आएगा। ठीक है। इट्स गुड, चर्निंग होनी चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए, एंड इट विल हेल्प एवरीवन, दैट्स आवर प्रेयर। सो दैट्स ओके, वन मोर क्वेश्चन। अगर मनुष्य की जूनी है जैसे, तो वो नेक्स्ट है वो किसी और में भी हो सकता है, या
वो जैसे 4 युग बोलते हैं कि सतयुग हुआ, देन त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, एंड देन कलयुग हुआ। तो ये रीबर्थ है मनुष्य का, मनुष्य में ही होएगा या मनुष्य का किसी और में भी होता है? कहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम बेसिकली क्या है कि या तो जैसे पायस, और हमने बात करी पायस एक्टिविटीज और जो सिंफुल एक्टिविटीज की, अगर आप ज्यादा सिंफुल एक्टिविटीज में हम एंगेज होते हैं तो हमारी लोअर स्पीशीज में जन्म होता है, कुत्ते का, बिल्ली का, किसी का जन्म भी हो कॉकरोच सकता है, का, वर्म कॉकरोच का, का, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि वो भी लिविंग एंटिटी है, उनमें भी सोल है, उनमें और ह्यूमन बीइंग में सोल सब में सेम है, कोई फर्क नहीं है। प्लांट का सिर्फ भी हो सकता है प्लांट हमारा। प्लांट की योनि में भी जा सकते हो आप, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में भी जा सकते हो, अगर आप सेम, बेसिकली कहा जाता है कि अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हो तो उसका एक एडवांटेज है कि आपको लोअर जो स्पीशीज हैं, जैसे वो हमने कहा बीस्ट की या एनिमल्स की या बर्ड्स की, उनमें नहीं जाना पड़ेगा, होपफुली मतलब यू विल गेट ए ह्यूमन बर्थ। और अगर आप बहुत अच्छी पायस एक्टिविटीज करते हो और लेकिन डिजायर्स हैं, तो आपको हायर प्लैनेट्स में मिल जाएगा, स्वर्ग लोक में जन्म मिल जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपका जन्म, मतलब यहाँ पे आपने 100 साल जिया, वहां करोड़ों अरबों साल की जिंदगी है, क्योंकि वैसे मान लो कहते हैं हेवनली प्लैनेट्स में 10,000 साल की जिंदगी है, पर उनका जो एक साल है और हमारा जो एक साल है उनका एक दिन के बराबर है। तो दैट मीन्स आप इफ यू कैलकुलेट ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन, इतनी जन्म मिलेगा। पर वो हमें बहुत, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस की आदत है, हमें बिजनेस करने की आदत है, हम सोचते हैं चल दैट्स बेटर। जैसे होता है ना कि हम आज 500 रुपए कमा रहे हैं तो हमें लगता है कि अच्छा हमें 5 लाख मिलेगा तो वी फील सो हैप्पी, बट वो भी दैट्स नॉट ए गुड बार्गेन। वी शुड ट्राई कि हमें इस बंधन से निकलें, क्योंकि अनलिमिटेड जो अटर्नल सर्वेंट है भगवान के, अगर हम बन जाएं या वहां भगवान के धाम में अगर वापस चले जाएंगे तो कभी जन्म, मृत्यु, बीमारी, ओल्ड एज कुछ भी नहीं होगा। अगर हमें हमें हमारी क्या कंडीशनिंग है, हम ये सोचते हैं कि थोड़े से सुख मिल जाते हैं तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कि आई एम डूइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप कैसे हो, सब बढ़िया कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि हमने हैप्पीनेस, जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो देखी नहीं है। हम एब्सेंस ऑफ मिजरी, जब हमें दुख नहीं हो रहा होता, एब्सेंस ऑफ मिजरी होती है, उसको हम हैप्पीनेस मान के चलते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, उसी में खुश। रियल जो ब्लिस जो कहते हैं ना, भगवान को कहते हैं वहां पे सत्य सच्चिदानंद, भगवान के जैसे विग्रह सत्य चित्त और आनंद, जो ब्लिस है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में है ही नहीं। जो ब्लिस है वो भगवान के धाम में है, वहां पे वो हमें आइडिया नहीं है। पर अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता है धीरे धीरे तो उसके आपको मतलब डिवोटीज के, सीनियर डिवोटीज है उनसे फिर देन यू यू कैन फाइंड आउट मोर, एंड उसका आगे आगे आपको, जैसे मैंने एनेक्डोट्स की बात करी, माइलस्टोन्स की बात करी, वो मिलते हैं और धीरे धीरे देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट, आपका जो कहते हैं फेथ भी बढ़ता है। It's 84 lakh species. The शास्त्र बताते हैं ये 84 लाख तरह की योनियां हैं, 4 लाख तरह की है शायद, 4 लाख ह्यूमन तरह की बीइंग्स, ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन में भी सब एक ही लेवल पे नहीं है, सब अलग अलग कॉन्शियसनेस सबकी कॉन्शियसनेस अलग है। अलग है। So it's a very थैंक यू। थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। so I think it's we meet again tomorrow, same time. Anybody would like to give any feedback, क्योंकि अभी जैसे हमने एक एक श्लोक करके कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट फास्ट भागना भी पड़ता है और थोड़ा सा लगता होगा कि बहुत बोरिंग भी कई बार लग सकता है, क्योंकि अगर हम 1-2 श्लोक या 4 श्लोक पे करते हैं तो उसमें हम बहुत डिटेल में कर लेते हैं और उसी पे डिस्कशन होता है। और हम उसको कवर करेंगे, इट्स नॉट कि हमें पूरा श्लोक कवर नहीं करने, पर एक एक करें, नहीं तो एसेंस हम कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक आज भी ले सकते हैं। आई डोंट नो व्हाटएवर। रमेश्वर गौरंग प्रभु, व्हाट डू यू से, व्हाट इज द पैटर्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दिस कोर्स इज 18 वीक्स का कोर्स है हमारा, तो इसमें हम 2 दिन में हम एक चैप्टर कर रहे हैं। इट्स अ समरी, एंड अदर्स दोज हु वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, दे विल रीच आउट। आप हमें फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम उनको जो भी जवाब होंगे या सवाल होंगे फिर आप हम उनको छोटे ग्रुप्स में यस और मैम, we'll divide in small groups. then डिटेल में फिर Yes. will be more personal, more interactive, कि आप लोग continuously जैसे सिर्फ सुन रहे हैं और Yes, ma'am. बोल रहे हैं वो नहीं होगा, फिर आप लोग बीच बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं, that will be Yes, more ma'am. मतलब Now we can make it more interactive, even if we have to complete the rest
जो भी सेशन है, और उसमें फिर होता है कि आप इंपॉर्टेंट श्लोकास पे कवर करते हैं, देन यू कांट कवर ऑल द श्लोका, दैट इज आवर चैलेंज जी। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। Thank you so Hare much, Krishna. Prabhuji and Mataji. हरे Hare कृष्ण। Krishna. So we thank Prabhuji and Mataji by chanting Hare Krishna Mahamantra loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सबको एक लिंक मिलेगा फीडबैक का, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर भरिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी